What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Tuesday, 13th of January, and what a crazy volatile Nifty expiry we had. Over the weekend, I was traveling for another Breakfast with Traders event. This time it was in Ahmedabad, and because I was on the move, I was not able to come up with the market analysis video, so apologies for that. Over the last couple of days, the markets have shown what volatility actually is. Almost last 3 महीनों से market काफी subdued था, but Thursday के दिन हमको एक news आता है regarding the tariffs, and the markets reacted negatively. And even on Friday, the markets tanked really hard. And even on Monday, the markets continued to tank hard. And at one point, even 25,500 levels were breached. And during that time, we get a news that there has been a trade deal that might happen between India and the US. And the markets shot up 300 points in less than 1 hour right after the news broke. So the markets have been hugely volatile, and a lot of traders took huge losses yesterday and even today, because even today's markets were quite volatile. Today, we opened gap up somewhere around 25,900 levels, and straddle premium थोड़ा बहुत अच्छा खुला था, because over the last 4 or 5 expiries, straddle has been opening sub 100, and today we got to see 120 straddle open. But as they say, there are absolutely no free lunches in the markets, and markets were quite volatile, and the market's realized moves were much higher than what the option premiums were implying. The day's range itself was almost 300 points, and intraday swings sab mila ke almost 800 points, 800 to 900 points ka intraday swing market ne dikhaya hai aaj. And in spite of all this volatility, the market moves were quite manageable because the premiums were quite higher, but the 2:30 PM gamma move was quite brutal. 2:30 PM pe call side itna zyada spike diya, in a span of less than 2 minutes, the calls almost quadrupled. So 10 रुपए का ऑप्शन 40 रुपए हो गया in less than 2 minutes. Even I got stuck badly in that particular call side gamma, and after a long time I had to close today in red. Almost 0.4-0.5% का आज loss लिया है मैंने भी. Let's see what should be the plan of action for tomorrow's Sensex expiry. Yes, tomorrow is Sensex expiry because NSE and BSE have declared a local holiday on Thursday, so the expiry of Sensex has been shifted to tomorrow. तो कल के लिए क्या प्लान्स बन सकता है, प्रीमियम्स कैसे है, कहाँ पे हम लोग ट्रेड्स कर सकते हैं, साइजिंग क्या रखना चाहिए, लेट्स डिस्कस. लेट्स गेट टू द टर्मिनल. ऑल राइट, Nifty has started to show some amount of volatility. यहाँ पे almost 2.5 months में काफी ज्यादा subdued था. Of course, there were once in a while there used to be like wide range candles, but most of the days, especially expiries, used to be small range candles. But उतना small range में ही markets volatile हो रहे थे. Mostly mean reversion kind of a markets थे. But over the last 3 or 4 sessions, the markets have started to move and they have started to swing in wide ranges. आप देख सकते हैं कि almost 300-350 point का range बन रहा है, and even in that range, it's not a clean move, but rather the markets have been vibrating, the markets have been oscillating in a wide range. तो आज का भी markets बिल्कुल easy नहीं था, because the markets have not been following price action points, inflection points को ज़्यादातर follow नहीं किया, and क्वाइट एक्सेप्टेबल है, क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है, बिकॉज जब भी मार्केट्स में न्यूज़ आती है एंड जब भी बड़े फंड हाउसेस अनवाइंड करना या नया पोजीशंस करना ये सब होता है, तो यूजुअली प्राइस एक्शन पॉइंट ज़्यादातर काम नहीं करता है. सो 5 minutes टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करेंगे तो वी ओपन गैप अप एट समवेयर अराउंड 25,900, एंड विद इन लेस देन 5-15 minutes द मार्केट्स केम ऑल द वे डाउन टू 25,700. ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का डाउन मूव था व्हेन द स्ट्रैडल इटसेल्फ वाज प्राइसिंग समवेयर अराउंड 120 पॉइंट्स. एंड आफ्टर दैट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप 5 minutes कैंडल पे ये जो विक्स दिख रहा है, दीज आर ऑल लेजिट मूव्स. अगर मैं 1 minute टाइम पे जाके दिखाऊं तो दीज आर ऑल लेजिट मूव्स, एंड इवन दीज पुल बैक्स वर क्वाइट शार्प एंड दे वर क्वाइट पेनफुल. In this up move, the calls actually spiked by almost 70-80%. जो 40-50 rupees पे जो calls थे, they all spiked to 70 rupees, and again within the next 5-10 minutes they got cooled off, and यहाँ पे puts भी again double हो गए थे. So yes, in spite of all this volatility, the moves were still quite manageable. And if I have to talk about my personal trades, up until this point I was at break even. यहाँ पे मैं break even पे था, and यहाँ पे I got badly stuck in this call side gamma. And this call side gamma, they shot up almost all the at the money calls to almost triple. ये 2 candle में, these are 1 minute candles mind you, तो इन 2 minute में जो 10 रुपए का ऑप्शन था वो पहुंच गया ऑलमोस्ट 40 रुपीज. 20 रुपए का ऑप्शन था वो पहुंच गया ऑलमोस्ट 60-65 रुपीज. सो इन अ स्पैन ऑफ लेस देन 2 minutes दिस happened, and यहाँ पे काफी ज्यादा गामा था. एंड इवन
द पुलबैक्स वर ऑल्सो क्वाइट ब्रूटल. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दिस रेड कैंडल ऑलमोस्ट crushed the calls by almost 50%, and again in the next 5 minutes the calls again came back to their original levels, and similar kind of an action happened here, similar kind of an action happened here. So basically the traders, especially who were short gamma, they got chopped left, right and center, and I was also one of those traders, and I had to personally book a loss of 0.4 to 0.5 के बीच loss book किया है मैंने आज. And the month is looking not so great. आज के पहले the month was somewhere around 1% up, and after today's 0.5% loss, probably I'm up 0.5% for the month. So again, till the budget is completely over and till the markets में जो news का base जो moves कम होने तक मेरा पोजीशन साइज काफ़ी कम होने वाला है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज ऑल्सो टू रिड्यूस योर पोजीशन साइज, बिकॉज आज भी आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो प्राइस एक्शन पॉइंट्स है वो रिस्पेक्ट नहीं किया है. तो टुडे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस वाज अ वेरी गुड प्राइस एक्शन पॉइंट, या यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन पॉइंट था बिकॉज इट वाज यस्टरडेज क्लोज, एंड यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा एक डिमांड जोन था. बट द मार्केट्स डिडंट रिस्पेक्ट एनी ऑफ दैट विद इन द फर्स्ट 15 मिनट्स. दे ब्रोक दैट एंड अगेन ऊपर आया एंड यहाँ से फिर से नीचे आया, एंड व्हेन द रेंज इटसेल्फ इज वाइड, मार्केट के पास काफ़ी ज़्यादा एक फ्री स्पेस मिल जाता है, तो मार्केट्स कहीं से भी घूम सकता है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टुडे. स्पेशली यहाँ पे जो मार्केट्स ने ट्रैप करके लोगों को मार्केट्स ने जो वापस घुमा, अ लॉट ऑफ पीपल वुड हैव बीन ट्रैप्ड रियली बैड इन दिस मूव. लेट मी नो इन द कमेंट्स आपने इस मूव को कैसे मैनेज किए, एंड हाउ वाज द एक्सपायरी डे, व्हाट वाज द रिजल्ट फॉर यू. देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट द निफ्टी स्ट्रैडल टुडे. स्ट्रैडल ओपनड एट 120, एंड आफ्टर दैट मार्केट्स में थोड़ा बहुत स्ट्रैडल भी स्पाइक हुआ, बिकॉज विद इन द स्पैन ऑफ लेस देन 15 minutes markets tanked almost 200 points. So there was a spike in the straddle as well. 135 के आसपास straddle spike हुआ, but after that it was a one way move, and yes, अराउंड 230 के आसपास जब मार्केट्स में एक अपसाइड का एक गामा आया, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इवन द स्ट्रैडल स्पाइक्ड ऑलमोस्ट 20 से लेके द स्ट्रैडल स्पाइक टू ऑलमोस्ट 50. दिस वाज सम सॉर्ट ऑफ एन अनहर्ड काइंड ऑफ अ मूव, एंड यहाँ पे काफी ज्यादा लोग फंस चुके होंगे, राइट. सो टुमारो इज सेंसेक्स एक्सपायरी एंड द सेंसेक्स प्रीमियम्स आर ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 390. तो कल के लिए शायद 350 का स्ट्रैडल ओपन हो सकता है, प्रोवाइडेड वी डोंट ओपन विद अ बिग गैप. तो अगर बड़ा गैप ओपन नहीं होता है तो 350 के 360 के आसपास स्ट्रैडल खुलने वाला है. बट अगर एक बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप ओपन होता है तो देन मोस्ट प्रोबेबली द स्ट्रैडल्स वुड बी ट्रेडिंग अराउंड 400 इटसेल्फ. स्पेशली अगर गैप डाउन खुलता है तो स्ट्रैडल 400 के आसपास ही खुलने वाला है, बट अगर गैप अप खुलता है तो मोस्ट प्रोबेबली द स्ट्रैडल्स माइट सी सम सॉर्ट ऑफ अ क्रश इन द इनिशियल टिक. सो ओपन इंटरेस्ट बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 84,000 के ज़्यादातर कॉल शॉर्ट हो गए हैं, एंड एट द सेम टाइम लॉट ऑफ 83,500 पे थोड़ा बहुत स्ट्रैडल्स बिल्ड हो चुके हैं, 83,500, 83,600 पे, बट द वॉल्यूम्स आर नॉट दैट सिग्निफिकेंट. ज़्यादातर कमिटमेंट ट्रेडर्स ने दिखाया नहीं है, बिकॉज नोबडी वांट्स टू टेक ओवरनाइट रिस्क. सो 84,000 कैन बी thought of as the ceiling, and 83,000 can be thought of as some sort of a floor for tomorrow's expiry. But again, all that kind of goes down the drain if the market opens with a big gap. तो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड्स क्या करना चाहिए? तो जो भी करना चाहिए प्राइस एक्शन ट्रेड्स, क्वांटिटी हमको आधा से कम रखनी चाहिए, 30% या 40% साइज से ट्रेड करनी चाहिए, बिकॉज द मार्केट्स हैव बीन स्विंगिंग क्वाइट अ बिट. एंड अगर आपका पोजीशन साइज जो लो वोलेटाइल मार्केट्स में सेम जो पोजीशन साइज है, सेम साइज को अगर आज हम ट्रेड करेंगे या कल भी हम ट्रेड करेंगे, तो बेसिकली आपका जो मार्क टू मार्केट स्विंग है एज अ परसेंटेज ऑफ योर कैपिटल विल बी ह्यूज. जो पहले मान लो कि मार्केट अगर डेज हाई से लेके डेज लो तक एक स्विंग करता है, तो इफ योर मार्क टू मार्केट स्वंग बाई 0.5%, तो यहाँ पे बिकॉज द रेंज ऑफ द डे इज क्वाइट वाइड, यहाँ पे आपका 1% स्विंग होने वाला है. तो यहाँ पे इस मार्क टू मार्केट स्विंग के बीच 0 से लेके 1% तक आप होल्ड नहीं कर पाओगे, एंड within the logical levels itself you'll make some sort of an adjustments, और ट्रेड्स को लेके थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करने वाले हो, एंड दैट विल डेफिनेटली नॉट एंड वेल. सो कल के लिए ऑफ कोर्स डेज हाई समवेयर अराउंड 84,200 लेवल्स के आसपास जो है वो दिन का एक्सपायरी का एक टॉप बनने वाला है. कल का जो लो है विच इज समवेयर अराउंड 82,900 लेवल्स. सो 83,000 एंड 84,000 दो लेवल्स पे कल एक्सपायरी होने का चांसेस ज्यादा है, डिपेंडिंग अपॉन वेयर द मार्केट्स गना ओपन. बट अगेन प्रोवाइडेड गिवन दैट द मार्केट्स आर प्रोन टू लॉट ऑफ न्यूज, ग्लोबल न्यूज दैट इज फ्लोटिंग अराउंड, वी कैन नॉट एग्जैक्टली से वेयर द मार्केट्स गना ओपन. बट अगर मार्केट्स इस रेंज के बीच ओपन होगा, तो लेट्स से आज के लो
एंड कल के लो के बीच अगर ओपन होगा तो देन बेसिकली वी शुड वेट फॉर द मार्केट्स टू एक्चुअली ब्रेक द रेंज एंड देन ट्रेड, बिकॉज अगर मार्केट फर्स्ट 45 मिनट्स के अंदर ये लो को अगर तोड़ देता है देन वी आर इन फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रेंडी डे. तो मार्केट्स निफ्टी 25,500 लेवल्स को तोड़ देगा, एंड अगर निफ्टी 25,500 लेवल्स को तोड़ देगा तो दैट विल ओपन फर्दर डाउन साइड. सो अगर मार्केट आज के लो के नीचे ओपन होगा एंड 10 o'clock के अंदर इस लो को तोड़ेगा तो देन आई विल टेक अ डायरेक्शनल ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड. बट अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होगा एंड देन मार्केट लेट्स से 10 o'clock के पहले इसको तोड़ेगा तो देन देयर विल बी अ डाउनसाइड लिमिटेड टू दिस लेवल. तो बेसिकली आप इस डिस्टेंस को स्कैल्प कर सकते हैं फ्रॉम द शॉर्ट साइड, एंड यहाँ पे वही स्कैल्प साइड का प्रॉफिट को थोड़ा बहुत कुशन को लेके उसी कुशन को दाव पे लगा के यहाँ पे आप एक लॉन्ग ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं. अगेन लॉन्ग ट्रेड्स क्या करना है, इधर आप वर्टिकल स्प्रेड्स भी कर सकते हैं या आप एक डेबिट रेशियोज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कंफर्ट जोन. बट अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो देन आई विल वेट फॉर द मार्केट्स टू एक्चुअली स्पेंड अराउंड 1.5 आवर्स, बिकॉज जब मार्केट फ्लैट खुलता है तो देन लोगों को ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होने वाले हैं, स्ट्रैडल डीके होने वाला है, एंड उसके बाद मार्केट्स को जो अर्ली एंट्रेंट्स है, जो एल्गो एंट्रेंट्स है, उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट इधर ऊपर या नीचे क्लोज होने वाला है. अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो देन द बेस्ट बेट फॉर अस इज सम सॉर्ट ऑफ अ मीन रिवर्शन ट्रेड्स. तो यहाँ पे इस लेवल पे हम लोग एक मीन रिवर्शन ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग एक मीन रिवर्शन ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं. इफ द मार्केट्स ओपन समवेयर अराउंड 83,600 or 83,500 levels, wait for the markets to either hit 84,000 levels or wait for the markets to hit 83,000 levels, and यहाँ से हम एक मीन रिवर्शन ट्रेड प्लान कर सकते हैं. बट अगर मार्केट कल के लो के नीचे खुल जाता है तो देन सिनेरियो थोड़ा डाइसी बन जाता है, बिकॉज वी विल नॉट बी एबल टू judge whether this dip is going to get bought or the dip is going to open, this gap down is going to open further downside. तो again अगर एक बड़ा gap down भी खुलता है तो I'll wait for the first 90 minutes of price action. अगर market flat भी खुलता है तो I'll be waiting for the first 90 minutes price action. तो first 90 minutes of price action जो है वो कल का जो पूरा दिन है उसको डिक्टेट करने वाला है, एंड डिपेंडिंग अपॉन हाउ द मार्केट बिहेव्स इन द फर्स्ट 90 minutes that will actually unravel like how the rest of the day unfolds. ठीक है, so these are my scenarios guys. I hope you guys had a decent expiry. अगर आपका loss भी होता तो I hope the loss is well within your control and the loss is well within your risk limits. Alright, I'll see you again after Sensex expiry. Till then, take care. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.